Dear students, in the Unit 2, we'll try to develop the basic understanding of the different management principles that have evolved over a period of time. Earlier, the management principles were based on military, warfare, and the wisdom in managing the kingdoms. The first step towards developing a systematic managerial text was undertaken in early 1900s. There were some practicing managers who developed some theories and converted it into the management text. Frederick W. Taylor was the first person to develop the scientific principles of management. Then Henry L. Gantt developed the Gantt charts for project management. Then Frank and Lillian Gilbreth developed the principles of applied time and motion studies. Henry Fayol developed the basic functions of management and tried to outline the different principles of management. Later, the researchers applied the concept of sociology to the concept of management because they felt that in management, the social element and the human factor are extremely important, and human beings cannot be managed merely like machines. Around the Second World War, the principles and statistical tools of mathematics and statistics were applied to the principles of management, and there emerged the foundations for management science or operation research. In 1950s, Peter Drucker developed the concept of management by objectives as a key management principle. और आज के टाइम में there are dominant management principles like total quality management, Six Sigma, Toyota production system, Kaizen, etc. इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कारण there has been significant improvement in the productivity in the manufacturing sector. Because of these principles, there has been great improvement in quality of the products and services because of the standardization that they brought in. And last but not the least, इन्हीं principles के कारण there has been a lot of improvement in the quality of the life of the workers and employees. Dear students, in this unit, we'll discuss two of the dominant management principles, one given by Henry Fayol and second by Frederick W. Taylor. Let us start with Henry Fayol. He was a French industrial engineer and he is regarded as a father of modern management theory. He developed the conceptual framework of management. He divided management into 6 industrial activities like technical, commercial, financial, security, accounting, and managerial. He was the first person to identify the 5 functions of management, namely planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. He gave the fundamental 14 principles of management in his book General and Industrial Management. These 14 principles have become foundations for the development of the management theory in future. The first principle states division of work. It believes that if the work is divided into smaller units, it can lead to specialization, which can result in improvement in the efficiency. The second principle states that the authority should be coupled with responsibility, which means that the authority in an equivalent amount needs to be provided if the responsibility has to be undertaken in a successful manner. The third principle is that of discipline. Fayol was very strong in his assertion कि एक काम को अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन और ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है.
द फोर्थ प्रिंसिपल वॉज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब था कि एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स एक ही सुपरवाइजर से मिलने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन और केओस ना हो। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के मुताबिक सारी एक्टिविटीज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं should be coordinated through a single head and a single plan of action. The next principle is subordination of individual interest to general interest. इसका मतलब है कि कोशिश की जानी चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ मिला के प्लानिंग की जाए, पर अगर किसी सिचुएशन में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्लैश में हो तो प्राथमिकता जो है और इंपॉर्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इस आधार पर कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपना काम का रिवॉर्ड उसी अनुपात और उसी प्रपोर्शन में मिलना चाहिए, सो दैट जो कोई एम्प्लॉय एडिशनल इंसेंटिव का हकदार बनता है क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया है तो उसको एडिशनल रेम्यूनरेशन या एक सैलरी या इंसेंटिव मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फ्योल के अनुसार काम करने वाले लेवल के लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को बहुत लिमिटेड अथॉरिटी देनी चाहिए और ज़्यादातर अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट जो कि पॉलिसी डिसीजन लेने हैं उनके पास सेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। इस प्रिंसिपल के मुताबिक देयर हैज टू बी अ चेन ऑफ कमांड और चेन ऑफ हायरार्किकल रिलेशन जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ ऑर्डर। फ्योल बिलीव्ड कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी क्रिएट करनी है देन राइट सेट ऑफ पीपल एंड मटीरियल should be made available at right places and at right time. The next principle is of equity. फ्योल के अनुसार मैनेजर सभी को फेयर और जस्ट तरीके से डील करे ताकि किसी में भेदभाव ना हो और इस फेयरनेस के कारण एम्प्लॉयज की डिवोशन और उनकी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा सके। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज stability of the tenure of personnel. According to this principle, मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाएं और वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें ताकि उनकी जो कमिटमेंट है और उनकी जो बिलोंगिंगनेस है वो बिजनेस के प्रति बढ़ाई जा सके ताकि वो और अच्छा काम करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। फ्योल ने कहा कि मैनेजर्स को इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि उसके सबऑर्डिनेट्स एनकरेज हों नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए, नई इनोवेशंस करने के लिए ताकि वर्क को इम्प्रूव किया जा सके और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और अगर ऐसा करते हुए कोई गलती हो तो मैनेजर्स को उसको भी किसी तरह से एब्जॉर्ब करके उसको ठीक किया जाना चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जिसके मुताबिक कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एक ऐसा माहौल वर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहिए ताकि सारे लोग एक कंपेनियनशिप की फीलिंग रखें और आपस में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन से काम करें। दूसरा डोमिनेंट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने 20th सेंचुरी के शुरू के सालों में दिया। इस अप्रोच के मुताबिक मैनेजमेंट को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंडर होने वाले सारे कामों को साइंटिफिक मैनर में एनालाइज किया जाए ताकि उस काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढा जा सके और उस बेस्ट तरीके को ढूंढने के बाद ये इंश्योर किया जाए कि काम सिर्फ उसी तरीके से हो। और टेलर ने उस बेस्ट तरीके को
साइंटिफिक वे कहा और इसीलिए इस फिलॉसफी का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट पड़ा। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया as a means of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest manner. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिनमें से सबसे अहम प्रिंसिपल है साइंटिफिक जॉब एनालिसिस। टेलर के मुताबिक हमें काम करते वक्त अपने डिसीजंस लेने समय कोई भी अंदाज़ों से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि काम को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना चाहिए और उसी साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस डेवलप करनी चाहिए और इंश्योर किया जाए कि काम उस साइंटिफिक तरीके से हो। नॉट ओनली देयर शुड बी साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जॉब, बट जो हमें एम्प्लॉयज भी रिक्रूट करने हैं उनकी भी साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि एक काम को करने के लिए सबसे राइट फिट व्यक्ति सिलेक्ट हो और उसको सही तरीके से ट्रेन किया जाए, ताकि वो अपना जॉब बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से कर सके। मैनेजमेंट को तीसरा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया, दैट इज मैनेजमेंट कोऑपरेशन। टेलर के अकॉर्डिंग वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत ही हार्मनी और सद्भाव का माहौल होना चाहिए, ताकि ग्रुप में एक्शन करते वक्त एक अच्छे माहौल में काम हो सके और सब खुशी से काम करें। द नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द टेलर इज फंक्शनल सुपरवाइजिंग। टेलर के मुताबिक जो मैनेजर है वो प्लानिंग करें और जो वर्कर्स हैं वो उस वर्क को एग्जीक्यूट करें, और क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन और प्लानिंग सेपरेटली है, इसीलिए मैनेजर्स का काम उसको सुपरवाइज करना है और वर्कर्स का काम है कि वो अपनी पूरी एनर्जी को काम करने में लगाएं। वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल गिवन बाय द टेलर वाज दैट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर ने समझा कि हर काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका ढूंढा जाना चाहिए और इंश्योर किया जाना चाहिए कि वही स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो करें। द नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर वाज फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको एडिक्वेट फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले, ताकि वो अपनी बेस्ट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। इस अप्रोच का बेसिक फोकस है कि हम रूल ऑफ थंब या एजम्पशंस या गेस वर्क को साइंटिफिक मैनर से रिप्लेस करें, और सेकेंडली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करें बाय डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द मशीन। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फसाइजेस कि जॉब्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए so that they economize on time, human energy and productive resources. And lastly, the scientific management advocates that the workers needs to have specified and well controlled tasks with proper instructions so that they work according to the procedures and methods without exceptions. साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी एडवांटेजेस रही हैं। द मेजर एडवांटेजेस, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने से देयर हैज़ बीन मेजर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करने से वर्कर की रेम्यूनरेशन बढ़ी। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक और रैशनल अप्रोच है, और लास्टली साइंटिफिक मैनेजमेंट इस चीज़ पे एम्फेसिस करती है कि जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा उस पे काम होना चाहिए। लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ जुड़ी हुई कुछ डिसएडवांटेजेस रही हैं, क्योंकि कुछ केसेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण
मैनेजमेंट और यूनियन में आपस में टकराव हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंसिडरेशन में कम लेके आई और लोगों का मानना हुआ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट treats men as if they are machines. But this approach had a significant influence and it impacted the future management literature. And the three fundamental principles of scientific management are: the first is the work is more efficient when it is divided into smaller units. And the second principle is that we need to find the best practices to do a particular task. And the third principle is that we need to get rid of the things that don't add value. So, friends, as we have seen, that the different management principles which have evolved over a period of time has built on the discipline of management and has given a lot of value addition to the entire corporate and the manufacturing sector. Thank you.